Hello friends, welcome to my YouTube class, and today we will go through the topic the tissue system under the chapter at anatomy of flowering plants. The tissue system. So first thing is, what is tissue system? So it is the group of tissue. Tissue system is the group of tissue that performs same function in the plants irrespective of their positions and structure in the plant body. Now there are three types of tissue system in the plant body. First is epidermal tissue system, second is the ground tissue system, and third is the vascular tissue system. These are the three types of tissue system in the plant body. So let's start the tissue system one by one. The first is epidermal tissue system. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स. उसमें पहला है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बट it may be multi-layered in some of the plants. Cells of epidermis are parenchymatous in nature. They form compactly arranged continuous layer over the plant interrupted by stomata only. In aerial roots, the epidermis cell is modified as velamen which absorb water from the atmosphere. तो जब हम प्लांट्स को देखेंगे तो प्लांट के इस एक स्टेम को कंसिडर करते हैं. तो स्टेम का जो सबसे बाहरी लेयर है या लीव्स का जो सबसे बाहरी लेयर है, दैट आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. And that outermost layer is either made up of single layered cells or it may be multi-layered cells. और ये जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमस इन नेचर होता है. और नेक्स्ट जो है एक मॉडिफिकेशन होता है इस एपिडर्मिस का, जिसको हम लोग वेलामेन बोलते हैं. जो एरियल रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वेंडा एक प्लांट है तो उसमें एरियल रूट्स होते हैं, तो वहाँ पे वेलामेन के फॉर्म में मॉडिफाइड होता है जो कि एटमॉस्फेयर से ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. Now in leaves of grasses, certain cells of epidermal tissue become very large and are known as bulliform or mother cells, which is meant for extra storage of water. जो दूसरा पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का वो है क्यूटिकल या वैक्स. तो दोनों जो क्यूटिकल है या वैक्स है, बोथ आर फैटी सब्सटेंसेस that are deposited over the outer surface of the epidermal cells wherever required. जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से क्यूटिकल या वैक्स आउटर मोस्ट लेयर पे या तो प्रेजेंट होते हैं या तो अब्सेंट होते हैं. मीन्स एपिडर्मिस के ऊपर या तो ये प्रेजेंट रहेंगे या अब्सेंट रहेंगे. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द नीड. तो फ़ायदा क्या है क्यूटिकल या वैक्स से? तो इट प्रिवेंट्स ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको ये बचाता है. एंड नेक्स्ट इज क्यूटिकल इज अब्सेंट इन रूट्स से क्यूटिकल अब्सेंट होता है. नाउ थर्ड पार्ट इज स्टोमेटा. तो जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस का, दैट इज इंटरप्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा इन द लीव्स. पहले ही हमने पढ़ा. तो stomata are structure present in the epidermis of the leaves. Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange in the plants. Stomata is composed of two bean-shaped cells called guard cells, which encloses stomatal pore. And in grasses, the guard cells are dump bell shaped. The guard cell possesses chloroplast and regulates the opening and closing of stomata. Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of guard cells become specialized in the shape and are known as subsidiary cells. तो स्टोमेटा का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. जैसा आपने पढ़ा कि सबसे सेंटर पे एक स्टोमेटल पोर होगा. दैट स्टोमेटल पोर is guarded by bean shaped cells called as guard cells. तो उसके बाहर guard cells हैं. guard cells में ही आप देख रहे हो कि क्लोरोप्लास्ट है.
and these guard cells regulate the opening and closing of stomatal pore. Now, next to the chloroplast is subsidiary cell, which is actually modified epidermal cell, and the outermost cell is the epidermal cell. So this is the structure of a stomata. The stomatal aperture guard cell and the surrounding subsidiary cell together called as stomatal apparatus. तो इन सभी को मिला के बनता है स्टोमेटल apparatus. जितने पार्ट्स हैं सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल apparatus. तो जो यहाँ पे आप बीन शेप देख रहे हो दैट इज गार्ड सेल. ये अगर हम ग्रास का देखेंगे स्टोमेटा तो दैट विल बिकम डंप बेल शेप. यहाँ पे किडनी बीन शेप है और वहाँ पे हो जाएगा डंप बेल शेप. तो ये याद रखेंगे. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का चौथा पार्ट है रूट हेयर्स. तो इन रूट एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड रूट हेयर्स. अगर रूट में जाएंगे तो जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें कुछ हेयर ग्रोथ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स. और जो रूट हेयर्स हैं दे आर यूनिसेलुलर एंड इलोंगेटेड इन शेप एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल. और नेक्स्ट है स्टेम हेयर्स. तो उसी एपिडर्मिस का स्टेम पे जो हेयर्स बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज स्टेम हेयर्स, या स्टेम हेयर्स को और अच्छे नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकॉम्स. स्टेम हेयर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्राइकॉम्स. तो ट्राइकॉम्स आर मल्टी सेलुलर. अभी हमने पढ़ा रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर बट द स्टेम हेयर्स आर मल्टी सेलुलर. दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड and they prevent water loss due to transpiration. So this is all about the stem hairs. Now next tissue system is ground tissue system. So except the epidermal tissue system and the vascular bundles. vascular bundles कहने का मतलब है xylem and phloem. तो except epidermis या epidermal tissue system and the xylem and phloem, all rest tissues are called ground tissues in the plant. It consists of following parts. तो इसके ये सब parts हैं. जो सबसे पहला है that is cortex. तो it is the region between epidermis and endodermis and it consists of parenchymus and mesenchymus cell. तीनों तरह के सेल इस रीजन में मिलते हैं कॉर्टेक्स में. कॉर्टेक्स के बाद आता है हाइपोडर्मिस. इन दिस केस न्यू फ्यू लेयर्स टू कॉर्टेक्स आर हाइपोडर्मिस. तो कॉर्टेक्स के बाद कुछ लेयर्स को हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस. जैसे पहला लेयर हो गया कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाद कुछ लेयर्स सेल्स को हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस. इन डाइकॉट हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स whereas in monocot it is made up only of mesenchymus cells. नेक्स्ट लेयर आता है एंडोडर्मिस का. इट इज सिंगल लेयर ऑफ parenchymus cell between cortex and pericycle. Certain cell of endodermis have severine and lignin deposition. These cells form Casparian strip or band in radial or transverse wall. नेक्स्ट पार्ट है पेरिसाइकल. इट इज सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड सिलेंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल. नेक्स्ट इज मेडुलरी रेज. इट इज एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल्स एंड इट हेल्प इन रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर. नेक्स्ट इज पिथ. इन pith, it is central position of root or stem. Generally it is made up of parenchymus cell. Its function is storage of water and food reserve material. Stele क्या होता है? All tissue present on the inner side of endodermis is called stele. एंडोडर्मिस के इनर साइड में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट है उसको स्टील बोलते हैं. और एक मेसोफिल वर्ड है, क्या है? इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ thin walled chloroplast containing cells and these are called as mesophyll. Now next is vascular tissue system. This is the third and the last type of tissue system in the plant body. The vascular tissue system consists of complex tissue that is xylem and phloem.
द जाइलम एंड फिलोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स, और जाइलम फिलोएम को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल्स को जानने के लिए, समझने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं, एंड द टर्म्स आर गिवन बिलो। तो द फर्स्ट टर्म इज ओपन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल को हम लोग ओपन कब बोलेंगे? तो इन द डाइकॉट स्टेम अ कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट बिटवीन फिलोएम एंड जाइलम। तो जो वेस्कुलर बंडल जाइलम फिलोएम का बना है, तो जाइलम और फिलोएम बंडल के बीचों बीच एक रिंग प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग कैम्बियम रिंग। और क्योंकि कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, इससे जाइलम और फिलोएम को ये फ़ायदा मिलता है कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम को डेवलप कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल्स। क्यों? क्योंकि कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, और कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है इसलिए सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फिलोएम डेवलप हो सकता है, होने के चांसेस वहाँ पे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन वेस्कुलर बंडल। दूसरा है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। तो मोनोकॉट्स में ऐसा होता है कि जो जाइलम फिलोएम है वेस्कुलर बंडल्स के, उनके बीचों बीच कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कैम्बियम रिंग जो है वो एब्सेंट है। तो जब कैम्बियम रिंग एब्सेंट है, इसका मतलब जाइलम और फिलोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम बनाने के काबिल नहीं है, या फिर वहाँ पर नहीं बन सकता है। तो जब नहीं बन सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। तीसरा है रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स क्या है? अगर हम स्टेम का टीएस लेते हैं, तो स्टेम के टीएस पे जाइलम और फिलोएम का अरेंजमेंट कुछ इस तरह हो कि दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हों, और दोनों दो अलग अलग रेडियस पर हों। मतलब जाइलम का रेडियस कुछ और हो और फिलोएम का रेडियस कुछ और हो, बट दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हों। मतलब एक जाइलम है तो दूसरा फिलोएम है, फिर जाइलम है फिर फिलोएम है। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। और ये मिलता है प्लांट्स के रूट में। इस टाइप का सिस्टम मिलता है प्लांट के रूट्स में। लास्ट है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। तो द वेस्कुलर बंडल वेयर बोथ जाइलम एंड फिलोएम आर प्रेजेंट टुगेदर एट द सेम रेडियाई, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। और इस टाइप का अरेंजमेंट मिलता है हमको लीफ और स्टेम में। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इन द प्लांट, and thanks for watching my video, and please subscribe my channel. Thanks a lot.